Hi guys, today we have with us Ankur Chaube. Ankur have gained from 64 percentile to 97 percentile. So Ankur, we want to make motivate lot of students and keep lot of people क्वाइट एज वेल कि नहीं कर सकते हो, एक बार 64 आ गया तो लाइफ में तुम्हारा जीवन ही खत्म हो गया ये वो. सो अंकुर, लेट्स स्टार्ट विद लास्ट ईयर. आपने लास्ट ईयर ऐसे क्या क्या कांड किए क्या क्या गलतियां की दैट यू गॉट 64 percentile, and then we look at the improvement graph. सर फर्स्ट ऑफ ऑल 64 परसेंटाइल मेरा इसलिए आया बिकॉज आई स्टार्टेड लुकिंग सीरियसली एट कैट फ्रॉम अगस्त, बिकॉज अगस्त में नोटिफिकेशंस आ जाती हैं और इनके एडमिट कार्ड आउट हो जाते हैं. सो सीरियसली तो मैंने सितंबर और अक्टूबर 2 मंथ्स इन्वेस्ट किए. और सेल्फ स्टडी की तो कोई डायरेक्शन भी नहीं था. काफ़ी सोर्सेस इधर उधर से फॉलो किए, बट दोज वर नॉट दैट मच ऑथेंटिक. I will say that lack of time. I should have started it earlier, then I would have performed much better. But this time I had made up mind because currently मैं working हूँ और पेरेंट्स को मनाना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज पेरेंट्स एक टिपिकल कंजर्वेटिव थॉट लेके चलते हैं कि अगर जॉब मिल गई तो अब आगे क्यों सोचना, उसी में प्रोग्रेस करो. So the concern was that, but somehow I convinced them, and I started preparation from April onwards, and yeah, I was able to perform better at the day, so I got that much calls. Superb, superb, superb. So yeah, today, first of all, thank you very much for coming and talking to us, because a very very less chance that a category student want to openly come and talk to the student. So thank you very much for coming, and I think your honesty is the best thing that you have. That's, I think that's one of the biggest strength. ठीक है, अभी इस साल की बात करते हैं. फॉर 97 percentile and 99 calls, तो how was your journey in that? सर बेसिकली हर आईएम्स का जो इंटरव्यू होता है वो समवेयर डिफरेंट होता है. लाइक बैंगलोर इज मोर ऑन योर वर्क एक्स, अहमदाबाद इज मोर ऑन योर academics, like Lucknow, which I converted. Also the Lucknow gives focus on both the things. And apart from that, the cap calls, they usually focus on your GS and your understandings about your curriculum. The call, as far as college is concerned, they have different set of parameters to judge you, and and you can't guarantee that you will convert all of them. If you convert, that's a great thing. So the journey was good. Only my journey was painful at the Bangalore because I faced straight rejection from the IIM Bangalore. Otherwise, I cleared all other IIMs. So you got the call. I am Bangalore छोड़ के you got the call from every I am, right? No, sir. I got call from all IIM except IIM Calcutta, Okay. but I was rejected only by the IIM Bangalore. Okay. In बाकी all convert. by all So converts. finally, which call you are going to join? IIM Lucknow, because I converted Ahmedabad, but it was for the FABM program. FABM program. अच्छा अच्छा, right. Great. Superb. So इस बार आपने क्या क्या improvement किए while studying for your preparation? We'll come to the interview skills का preparation as well. तो how was your journey look like when you were preparing for the कब start किया? इस बार आपने कब start किया पढ़ना? सर अप्रैल 1 से स्टार्ट किया था. बेसिकली स्टार्टिंग में लॉट ऑफ कंफ्यूजन होता है कि सोर्सेस कौन से फॉलो करें. So hopefully I got few mentors and few seniors also who guided me. I think networking is the best part. You should contact your seniors or the colleagues that have been into the IIMs. So starting में engineers का main problem तो VRC होता है. बट मेरा दो प्रॉब्लम था. मेरा वीआरसी भी प्रॉब्लमेटिक था और एलआरडीआई भी. इनफैक्ट मुझे याद है कि जब मैंने कैट 19 दिया था तो मुझे एलआरडीआई का सिलेबस तक नहीं पता था. बट इन 20 आई गॉट टू नो अबाउट इट. और रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी थी, तो उसके लिए अब जितना भी अपने पास टाइम हो, तो ए ऑन हो गया, साइकी हो गया, या ए आई डेली हो गया, और फॉर द बिजनेस पर्पस बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया. तो ये सब चीज़ें फॉलो की. इट टुक मी अराउंड 2 to 2.5 months to become an avid reader, and CAT demands only that much, that you should be avid reader as well as you must have comprehension skills. Rest the things will fall apart. और एल में बेसिकली मेरा फोकस मोर ऑन सेक्शनल्स था.
because LRDI and VRC, I used to give daily one more sectional mocks. क्वांट तो अपना ठीक ही था, इंजीनियर हैं तो अपन कर लिया है क्वांट में मैनेज. ट्रू, सुपर्ब सुपर्ब. तो मॉक का आपको कुछ स्कोर आपका याद है कि वर यू गेटिंग, यू वर एक्सपेक्टिंग yes sir, 97 परसेंटाइल के ज्यादा हो गया थोड़ा, मुझसे ज्यादा था. Yes, the main catch comes here. I would suggest that never to take your mock score very seriously, because मुझे अभी भी याद है कि मेरा मॉक में कभी भी 80 परसेंटाइल के ऊपर गया ही नहीं. ओके और मेरे जो फर्स्ट मॉक का LRTI स्कोर था, यू विल बी सरप्राइज टू नो -1.5 था. सो और मैंने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मॉक मतलब सीनियर्स ऐसा बोलते थे, मॉक इज जस्ट लाइक अ प्लेग्राउंड प्रैक्टिस सेशन, कि तुम जितनी गलतियां करनी है बेटा यहाँ कर लो, बट इट विल कॉस्ट यू इन कैट इफ यू डोंट प्रैक्टिस हियर. So basic funda was to get learnings from your mistakes and try to not apply those mistakes in the next mocks. और मॉक्स अपन ने दिए होंगे आई थिंक इंक्लूडिंग सेक्शनल 65 to 70 मॉक्स दिए होंगे, बट फुल लेंथ 35 to 40 मॉक्स दिए होंगे. एंड लास्ट के 1.5 months में सिर्फ मॉक और एनालिसिस, मॉक एंड एनालिसिस, ओनली दैट थिंग वाज डन. सुपर्ब यार, नहीं दैट इज इंपॉर्टेंट यार. 35 मॉक तो लगता ही है यार. देयर आर स्टूडेंट जो 10 मॉक भी निकाल लेते हैं, बट फॉर अ हार्ड वर्किंग पर्सन आई थिंक इतना मॉक तो चाहिए होता है. ठीक है, तो जब आपका पहले मॉक का स्कोर आया माइनस में गया, तो लगा होगा कि भाई ये तो बुच्च हो गई, ये तो होने लग. ये कब था, ये इस साल था कि लास्ट ईयर? नहीं, 2020 में जब प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, आई टुक फर्स्ट मॉक इन जुलाई फर्स्ट वीक. तो बहुत ही घटिया स्कोर आया. एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट कि आगे चल के लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि अपने मॉक्स जो होंगे उनमें स्कोर इम्प्रूवमेंट होगा. बट मेरा जो सेकेंड लास्ट मॉक था, जो मैंने दिया था कैट से 4 दिन पहले, तो उसमें मेरे परसेंटाइल सिर्फ 44 थे. ओह शिट. So main funda is to control on your nerves on the CAT day, क्योंकि मोर और लेस पेपर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ आपको वहाँ डुएबल मिल ही जाएगा. बट अगर आप अपना काम पेशेंस नहीं खोगे तो यू विल परफॉर्म बेटर, because on the CAT day many people lose their calm. There are people that get 99 plus in mocks but perform really bad at the D day, and there are also aspirants that like me that never crossed 80 percentile but managed to get 97 around 97 percentile on the CAT day. यू नो इट्स लाइक वो आईपीएल का गेम के गेम्स में कभी अच्छा नहीं गया, लेकिन फाइनल में गलती से पहुंच गया तो भैया मैच जीत के आए फिर. हाँ, इट्स अ मोर और लेस व्हाट यू पुट ऑन दैट ऑन दो इन दोस 2 or 3 hours, कि आपने जैसा भी परफॉर्म किया, क्योंकि आफ्टर ऑल एवरीवन जस्ट लुक्स एट योर रिजल्ट्स. nobody is bothering to see what processes you followed or what methods you applied to get that much. True. So if I just try to look back, आपने लास्ट ईयर कैट दिया था 64 परसेंटाइल आया, और इस बार जब आपने पहला मॉक दिया माइनस में स्कोर गया, तो एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, उनको मेन एडवाइस ये रहेगा कि भाई अगेन लाइक ही सेड कि डोंट वरी अबाउट द मॉक स्कोर. मॉक स्कोर ऊपर नीचे होता रहेगा, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ. तो देयर लॉट ऑफ पीपल आते हैं वो छोड़ देते हैं कि भैया नहीं, पहला मॉक दिया इतना बेकार स्कोर आया भाई, जान दो, हमारे बस की बात ही नहीं है, या कैट बहुत एक्सपेंसिव है. मैंने लास्ट अटेम्प्ट में यही किया था. लास्ट टाइम जब मैंने मॉक दिया था, तो आई रिमेम्बर कि मैंने 4 मॉक दिए थे, और जब स्कोर्स बड़े ही खराब आए तो मुझे डर आ गया अंदर से कि नहीं हो पाएगा, और ऐसे ही जाएंगे, देखेंगे जैसा होगा, पेपर देंगे उस हिसाब से. बट वही होता है कि एंड डे पे जब आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है उस प्रिपरेशन का. ट्रू. So that is, I think one big lesson कि don't worry about the first few. मैं तो कहता हूँ कि पहले 5 मॉक का स्कोर देखो ही मत भाई. It takes 5 mock का time to lose your virginity kind of thing when it come to MBA preparation, CAT preparation. तो इसलिए हमने क्या किया है कि पहले 4 मॉक्स था बेबी मॉक्स, एकदम इजी कर दिया. यार पहला मॉक एकदम टफ तुम रख दोगे कैट के लेवल का तो बच्चा भाग जाएगा. यू सर्वाइव बिकॉज आपने लास्ट ईयर देखा हुआ है. अगर पहली बार वो मॉक देते तो शायद आपका भी जो लास्ट ईयर हुआ वही होता फिर, अरे यार ये क्या हो गया. ठीक है, तो दैट इज वन चेंज वी हैव डन कि दिस ईयर वी इंट्रोड्यूस 4 बेबी मॉक्स, एकदम इजी लेवल, एकदम 2 + 2 4,
ताकि तुम भी खुश, हम भी खुश। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। एग्जैक्टली, बिठाना जरूरी भाई, 2.5 घंटा बैठना वो बहुत। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही होता है, 2 आवर्स या 3 आवर्स आपको कंसंट्रेट करना, क्योंकि आदमी पहले वीआरसी इतना ज्यादा रीड करके और फिर एलआरडीआई में पहले तो 2 मिनट 3 मिनट तो पता ही नहीं चलता एलआरडीआई का सेक्शन जब आउट होता है, तो उसके बाद फिर क्वांट पे आके एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, और उसमें भी अगर आपका कोई एक सेक्शन टफ आ गया तो दैट इज अनदर हैंडलिंग ट्रू, प्रेशर ट्रू, गेम। ट्रू। सेकंड थिंग इज, कभी 80 परसेंटाइल पार नहीं हुआ। So, ये ना, देर आर सम मॉक सीरीज विच आर वेरी वेरी टफ, यस जबकि यस। इतना टफ पेपर आता भी नहीं है। हाँ, कुछ पेपर्स ऐसे आएंगे जो कि बड़े अनरियलिस्टिक होंगे, मतलब एग्जैक्टली। पर या ऐसा यू, नहीं कि, हाँ बोलो सर। अगर आपको अगर 1 आवर्स या 2 आवर्स भी दे दे तो वो सेट्स आपसे नहीं बनने वाले। नहीं बनने वाला, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ तो ना कि यार एक आधा सेट वैसा हो तो चलता है, पूरा पेपर ही तुम ऐसा डाल दोगे तो बच्चा हाँ कहाँ जाएगा। आई अंडरस्टैंड देयर, लाइक हमने भी ना लास्ट के 6 मॉक्स और एकदम एडवांस लेवल फाड़ू लेवल, बट बीच में अच्छे मॉक्स भी है, नॉर्मल मॉक्स भी है, तुम हाँ सारे मॉक्स फाड़ू कर दोगे। सी दिस इज द मेन व्हाई द कोचिंग क्लासेस आर डूइंग दिस। उनका मेन फंडा क्या होता है, टू अट्रैक्ट द मेन स्टूडेंट्स। टॉपर हाँ लोग, टॉपर लोग। आम हाँ आदमी से टेंशन नहीं है, टॉपर लोग उनको चाहिए। वाई? बिकॉज वेन यू आर ज्वाइनिंग अ कोचिंग क्लास ना, आपका होता है कि नहीं मुझे टफ चाहिए, मुझे 24 घंटे सिखाओ, हाँ मेरे को ये कराओ। सपोज आई लॉन्च अ बैच कि हम 22 घंटे पढ़ेंगे रोज, पब्लिक आएगा। बट इफ यू लुक एट रियलिस्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू, 22 घंटे पढ़ेगा तो सोएगा कब, लाइव कब जिएगा? हाँ सो दैट इज अट्रैक्शन के लिए इज गुड। पब्लिक हाँ दो मॉक देता एंड देन दे गेट दिस थिंग डाउन एंड दे आर आउट ऑफ द गेम। तो हाँ टिके रहो एंड तक भाई, टिके रहो। 80 परसेंटाइल भी पार नहीं हो रहा है, उस दिन के ऊपर है। हाँ, वो डी डे दैट के ऊपर केस है। आई रिकमेंड कि लास्ट का पेपर दो यार, स्पेशली हाँ कैट 2001 टू 2000, 1995 से लेके 2005 तक का, दैट वाज द बेस्ट कैट का लेवल जो अभी भी ऐसे आ रहे हैं। दैट्स हाँ समथिंग यू कैन डू। हाँ, सर आई वुड आल्सो लाइक टू सजेस्ट कि जैसे अगर आपने कैट की प्रिपरेशन की है, देन डोंट पुट योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। लाइक इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द कैट, देन यू शुड आल्सो गिव अदर एग्जाम्स आल्सो। सो मे बी आपका कैट वाला डे अच्छा ना हो, बट यू कैन परफॉर्म बेटर इन अदर एग्जाम्स आल्सो। ट्रू, ट्रू, ट्रू। Yeah, sir. Hopefully I did well in other exams also. So I got calls from that also and converted those also. कौन सा कॉल था और? SIBM Pune I converted, and XIMB I had applied from outside. I also cleared MDI Gurgaon, अरे वाह। and VJ Som में तो अभी wait listed है, हो जाएगा clear वो भी hopefully. ठीक है, तो आपने ई डब्ल्यू एस वालों भी अप्लाई किया एंड देन ओपन में भी आके अप्लाई किया इन हाँ सिम्बोसिस एंड एक्सएलआरआई। yes sir, yes sir. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हाँ, वही बैकअप तो चाहिए यार। बट अदरवाइज इफ यू लुक एट फ्रॉम द कैटेगरी पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक आईटी एंड आईएमसी पर आप फोकस कर सकते हो, तो दैट्स नंबर वन यू कैन डू। देन टेस्ट, हाँ देयर अदर एग्जाम एज वेल। सिम्बी में एस सी एस टी का सीट्स है, हाँ इफ यू फ्रॉम द रिजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेट। सो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड इज हाउ मच, इफ यू डोंट माइंड टेलिंग अस, योर yes एकेडमिक sir. 10 12 ग्रेजुएशन? सर एकेडमिकली बढ़िया था अपना परफॉर्मेंस, बिकॉज इन 10th आई गॉट 10 CGPA, इन अरे बाप 12th रे, आई गॉट 93% एंड इन ग्रेजुएशन आई गॉट 75%। 997 10 9 7। सुपर्ब। अच्छा, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपको क्या लगता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में कम से कम कितना चाहिए टू गेट ऑल 10 आईएम कॉल्स? सर ऑल 10 यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑल 20, कैप? सॉरी, 20? 25 ऑल 20। सर अगर आपका एकेडमिक्स ठीक ठाक है, एबव एवरेज है, और आपने मतलब और बाकी आपका प्रोफाइल थोड़ा ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट दैट 96.5 प्लस विल बी सफाइज दैट मच। शुड बी सफिशिएंट। 97 लेके चलते हैं अगर आपको हाँ मेन एबीसी का चाहिए। हाँ इफ आई गिव दैट नंबर, मेरा जो एनालिसिस बोलता है 97 फॉर एबीसी, यस 90 परसेंटाइल फॉर मेन आइम्स, आपको लखनऊ इंदौर कोई ना कोई तो कॉल आ जाएगा, एंड 80 परसेंटाइल फॉर द बेबी आइम्स। ये यस। मैं 3 नंबर जो सबको रिकमेंड करता हूँ, 80 परसेंटाइल, 95, सॉरी 90 एंड 97। हाँ बेसिकली कॉल्स के लिए इतने हैं, बाकी आपको कन्वर्जन करना है तो थोड़ा हाई स्कोर करो, हो जाएगा आराम वो से। हाँ हाँ, वो यार इसके ऊपर जितना मर्जी करो, मतलब इसके हाँ नीचे मत आना, काइंड ऑफ हाँ, थिंग। बेयर मिनिमम ये है। और द एक मिथ होता है लोगों में कि अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको कम पे भी कॉल आ जाएगी, बट लोग को ये नहीं पता होता है कि सीट्स भी कम होती हैं।
Exactly, So exactly. conversion is more difficult in the category aspirants, while in the general category aspirants, getting call is more tougher than to convert it. Convert. True, true, true. So like there are few problems from the reservation point of view. जैसे अहमदाबाद में आपकी seats around 450 है, but for the EWS they have only 10 seats. Hmm. Like in Calcutta they have only 9 seats for EWS. तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाती है to get the calls. Superb. Right, 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 right. ठीक है. एनीथिंग यू वांट टू ऐड आपकी जर्नी में, जब आपको लगा हो कि यार ये चीज करनी चाहिए थी या ये चीज तुम नहीं कर पाए ड्यूरिंग दिस एमबीए प्रिपरेशन? बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा और डाइवर्स होना चाहिए था वीआरसी में. दो मेरा सबसे बढ़िया पॉइंट यही हुआ कि मैंने लास्ट ईयर जब दिया था तो वीआरसी आई स्कोर्ड ओनली 66 परसेंटाइल, बट दिस टाइम आई स्कोर्ड 92 परसेंटाइल. बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ फील्ड्स ऐसे थे जिसको मैंने स्टडी नहीं किया हुआ था, तो डाइवर्सिफाई एज मच एज यू कैन. In LRDI there was still lack of few exposures for the few set of questions. तो बेसिक थिंग इज दैट कि आपको जितना ज़्यादा एक्सपोजर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आप बढ़िया परफॉर्म करोगे. एंड ऑल्सो यू शुड नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये प्रेशर का ही गेम है. जिसने इसको हैंडल कर लिया, एंड यू नो दैट कैट इज प्लेथोरा ऑफ द कॉलेजेस, बिकॉज इतने सारे कॉलेजेस हैं आपके पास कैट में. आई डोंट थिंक कि कोई और एग्जाम ऐसा होगा जिसमें इतने ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे. तो अगर आप एक पेपर में एक दिन वो सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे बेटर परफॉर्म कर दोगे, आपके पास मतलब इतने ऑप्शंस हो जाएंगे कि मतलब आपको चूज करना पड़ जाएगा कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. So I will suggest that more you work hard, more you practice, the better you will perform at the D-Day. सुपर्ब, सुपर्ब. एंड आपको स्कॉलरशिप का कुछ आइडिया है? व्हाट इज द स्कॉलरशिप सिनेरियो? बिकॉज आई थिंक आईआईटीज में है 50% स्कॉलरशिप है. सर बेसिकली फीस में इनका होता है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. तो वो आपका थोड़ा इनकम वगैरह का डिटेल्स लेते हैं और कुछ स्टेटमेंट लेते हैं आपके कुछ ट्रांजैक्शन के, तो मतलब उसके कॉलेज में अकॉर्ड. जाके होगा ना, कॉलेज में हाँ जाने हाँ के बाद हाँ होगा ना? अभी नहीं है हाँ. ना? अभी तो नहीं हुआ आपका? अभी नहीं है सर, अभी नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं होता. एंड एनी आइडिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु गेट दैट थिंग? सर आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी उनका वेबिनार होता है तो वो उसमें वो बताते हैं एडमिशन कमेटी के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, सो उसमें पता चलता है इसके बारे में. Great, great, great. Yeah. Again, so I again I'm saying same thing. Your best feature, best part of you is honesty. तुम एकदम जो है भैया हम ऐसे ही हैं, जिसका take it or leave it kind of attitude. So I think that will take you to a better company, better job as well. So once you join the college, there is no OBC, EWS, everything नो get नो. cut. अभी हाँ वहां जाके तुम्हारी प्योर परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन नाउ योर परफॉर्मेंस. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट. आप जाके वहाँ अच्छे से करो, एंड होपफुली विल टेक वन मोर इंटरव्यू वंस यू कन्वर्ट द टॉप कंपनी. थैंक यू सर. कम एंड से सेम थिंग है. ईडब्ल्यू सो और ओबीसी और सोचो मत, तुम बस अपना परफॉर्मेंस करो. हाँ लाइकवाइज आपका बैच वही है. अब उसमें चाहे 4 ईयर वर्क एक्स वाले लोग हों या कोई फ्रेशर हो, आप सेम बैच में हो. लाइक आई एम लखनऊ, तो वहाँ पे आपका बैच तो सेम ही होगा ना, तो देर इज नो बायसनेस. अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन हाउ यू परफॉर्म इन दोज 2 years. So basically the catch is that much only. ट्रू, 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 ट्रू. ग्रेट. थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड टॉकिंग टू अस. Thank you sir. थैंक यू यार, थैंक यू. व्हेन आई स्टार्टेड दिस सीरीज ना, मैंने जो लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, एवरी वीक वन वीडियो ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट, तो काफी बच्चों का वो आता था कि काफी मेरे को वो हेड मैसेजेस आए कि नहीं ये गलत बात है, तुम इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हो, देश के अगेंस्ट जा रहे हो. तो मैं बोला भाई मोदी जी से बात करो जिन्होंने ये स्टार्ट किया है. मेरी क्या गलती है? आई हैव माई स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी, दे आस्क मी दिस क्वेश्चन कि ओबीसी एसटी एसटी की कट ऑफ कहीं पे नहीं है. So it was my responsibility as well to talk about them. तो did you felt the same kind of thing? कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको कोई किसी ने कुछ बोला हो? हाँ मुझे अभी भी याद है कि जब मेरा IIM-FABM कन्वर्ट हुआ था IIM अहमदाबाद का, तो इट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ. पर मैंने नेक्स्ट डे देखा तो एक दो मैसेजेस थे अब्यूजेस के, पर्सनल अब्यूजेस के, और लोगों ने बोला था कि तूने नकली सर्टिफिकेट बनवा के कन्वर्ट कर लिया ऐसा ऐसा. बट आई थिंक यू शुड इग्नोर सच पीपल.
क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट ने वो नॉर्म सेट किए हुए हैं तो हम कौन होते हैं उसमें दखल देने वाले. आई थिंक दे मस्ट हैव थॉट समथिंग, दैट्स व्हाई दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग. सो एट द एंड ऑफ द डे अगर उनको भी ये चीजें मिलती तो आई डोंट थिंक कि वो इसको छोड़ के आगे जाते. बट यू कैन सी दैट मैंने यहाँ तो कैटेगरी से दिया, बट मैंने जैसे MDI कन्वर्ट किया या SIBM पुणे कन्वर्ट किया, तो वो मैंने ओपन कैटेगरी से ही किया है. सो इट्स अल्टीमेटली ऑन यू हाउ यू परफॉर्म. अगर आप कैटेगरी एस्पिरेंट हो तो मेरा एक ही सजेशन होगा कि डोंट फोकस ऑन दीज पीपल, जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस. और लास्ट में ऐसा ही होगा कि आपको कॉल्स तो आ जाएंगे, बट कन्वर्ट करने के लिए आपके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए कि आप उस कॉल को कन्वर्ट कर सको. ट्रू And ट्रू ट्रू ट्रू. नहीं, आपने ये सही. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द मैसेजेस आर नॉट आउट ऑफ द हेट्रेड, दे आर मोर अबाउट द जेलसी. यस, फ्रस्ट्रेशन. मैं नहीं कर पा रहा. हाँ, हाँ, फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि अगर कोई एस्पिरेंट क्लियर किया है तो यू विल टॉक टू देम दैट दे आर वेरी मच डाउन टू अर्थ. उन्हें पता है कि ये चीजें क्यों इम्प्लीमेंट की गई हैं. एंड इफ यू हैव टू डू लाइक यू सेड, जाओ मोदी से बोलो. एग्जैक्टली भाई, सरकार से बात करो. हाँ. तो वो तो है ही है. यहाँ पे आके पर्सनल मैसेज करके क्या फायदा. हाँ, और नहीं, अभी तो कम हो गया मेरा. अर्लियर माई दिस द व्हेन आई स्टार्टेड दिस सीरीज ना, तो द हेट रेट वाज अराउंड 85% पीपल लाइक्ड एंड 15% पीपल नॉट लाइक्ड. हाँ, अभी वो 90 के ऊपर आ गए हैं, तो द अभी एक्सेप्टेंस हो गया. भाई मैंने पहले बोला, भाई ये वीडियो रिजर्व कर, तू क्यों देख रहा है? हाँ, और देख के क्या. अपनी आँख क्यों लगा रहा है? और ठीक है, अभी भी कमेंट आते रहते हैं एक आधे, बट ठीक है, दैट्स हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ नाउ. हाँ. ठीक है, चलेगा. थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर.